Hi everyone, in today's video we are going to cover 10 topics in one jumbo cue card and my name is Neelam. You're watching my channel Neelam IELTS. So आज के जो टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर अप करने वाले हैं, द फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट डिसीजन दैट यू वंस मेड. The second, describe an occasion when you got positive feedback for the work you did. Next, describe a positive change in your life. And our next cue card, describe an ambition that you haven't achieved yet. Then describe a difficult thing you did and succeeded. Okay, any tough thing you did, or describe an important thing you learned but not at your school or college. You might have learned something. Then describe a daily routine that you enjoy. है ना, डेली आप कुछ भी इंजॉय करते होंगे. डिस्क्राइब समथिंग यू डिड विद समवन और अ ग्रुप ऑफ पीपल. एंड आफ्टर दैट डिस्क्राइब एन अचीवमेंट और सक्सेस यू आर प्राउड ऑफ. Okay, and the last one is describe an activity you do to keep yourself fit and fine or fit or healthy. So these are the 10 cue cards. इन क्यू कार्ड्स की स्टोरी प्लॉटिंग के लिए मैंने अ डिफ़िकल्ट थिंग यू डिड की रेफरेंस ली है. The cue card is talk about a difficult thing you did. When you did it, what it was, how you did it, and how did you feel about it. So that is the cue card in whose reference we will be using that story plot. Introduction as usual उसी तरीके से start होगा जैसे बाकी cue cards शुरू करे थे. As soon as I saw this topic, multiple occasions have crossed my mind when I did many toughest things in my life. या फिर आप बोल सकते हो when I did some sorts of Herculean tasks in my life. Herculean tasks का मतलब होता है the toughest things. Although some of them failed utterly to meet up my expectations. यानी उन इंसिडेंट्स में से कुछ तो मेरी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा नहीं उतरे हैं, but majority of the times I felt on cloud 9 because of the positive outcomes of those difficult things I did try. Okay, कि ज़्यादातर टाइम I felt on cloud 9 इसका मतलब होता है you felt proud, क्योंकि उन difficult things ने उन difficult things को जब आपने ट्राई करा तो आपको पॉजिटिव आउटकम्स मिले होंगे, राइट. एंड वन सच इंसिडेंट आई वॉन्ट टू शेड लाइट अपॉन इज, यहाँ मैंने यूज़ करा है व्हेन आई एब्सटेन फ्रॉम द फास्ट फूड. एब्सटेन फ्रॉम द फास्ट फूड होता है जब आपने अपने आप को फास्ट फूड से दूर रखा हो. नाउ इन दीज fill ups you are going to fill up according to the cue cards, right. If the cue card is talk about a positive change, तो आप बोलोगे कि that as soon as I saw this cue card, multiple occasions have crossed my mind when I did some change in my lifestyle. Although some of them failed utterly to meet up my expectations, but majority of the times I felt on cloud 9 because of the positive outcomes of those certain changes, and one such change I want to shed light upon. I hope now you know how you can twist the introduction of any cue card according to your convenience. Next bullet points को cover करते हैं what it was and how you did it. Okay. So वही as usual starting off your second hint. While walking down my memory lane, इसका मतलब होता है जब आप अपनी यादों की गलियों से गुजरो. I vividly remember it was the time when I was in my teens. Under the influence of my friends, I got addicted to having junk food regularly without a single miss. अब इसका मतलब क्या है कि जब आप अपनी टीनेज में थे और आप अपनी कंपनी जो फ्रेंड्स की थी वो थोड़ा ऐसी थी कि दे वर एडिक्टेड ऑफ हैविंग जंक फूड, तो आपने भी विदाउट अ सिंगल मिस उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया. ऑल राइट. Slowly and steadily, the junk food took toll on my health. अब took toll का मतलब होता है that impacted you adversely. कि धीरे धीरे जो जंक फूड था उसने मेरी हेल्थ को इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया. एंड आई डिवेलप्ड सेवरल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ राइजिंग ओबेसिटी. अब देखो, अगर आप फास्ट फूड कंज्यूम करते हो तो ओबेसिटी आती है, और ओबेसिटी के बाद देयर क्रीप
some another sort of health complications, है ना. So वहाँ मैंने बताया कि I developed several health complications because of rising obesity. I became more of a lethargic person. अब मैं इफ़ेक्ट्स बता रही हूँ. And even looked older than my age. और फिर मैंने एक ऐसी पार्टी अटेंड करी जहाँ सब ने मेरा मजाक उड़ाया. This wasn't until when I was mocked at by my kith and kins. Kith and kins होते हैं relatives and friends who had belly laughs. Belly laughs यानी जब तक पेट ना दर्द हो जाए तब तक हंसना. Seeing me at my birthday party. So now आई यूजुअली से यू स्टोरी को पहले से ही अपने माइंड में इम्बाइब कर लीजिए. मेरी स्टोरी ऐसे थी कि जब मैं टीनेजर था तो मैंने फ़ास्ट फूड लिया और जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट हुए. इफ़ेक्ट बता के आपने बताना है आपने बर्थडे पार्टी अटेंड करी है और वहाँ सब लोगों ने आप पे हंस दिए हैं, राइट. अब स्टोरी प्लॉटिंग ऐसी है कि उनकी हंसी से आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुई है और आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो मैंने लिखा है दैट वॉज अ वेकअप कॉल. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वेकअप कॉल. सो दैट वॉज अ वेकअप कॉल फॉर मी एंड आई डिसाइडेड टू डिच द हैबिट ऑफ हैविंग फास्ट फूड. When you ditch the habit, it means you try to get rid of it. No, you don't try, actually you get rid of that particular habit or hobby and all. Even I became an early riser. मैं जल्दी उठने वाला बन गया so that I could walk couple of miles in early morning. अब यहाँ मैंने sentences के साथ खेला है. मैं ऐसे भी बोल सकती थी I became an early riser and started going for morning walk. लेकिन मैंने sentence structure लगा दिया so that ताकि मैं जा सकूँ couple of miles in early morning. I hope that makes sense. Next hint को करते हैं कि how difficult it was and all, है ना. So initially, to be very honest, it was completely a hard nut to crack to embrace this change as I was a die-hard fan of Chinese dishes. जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो ऑफ कोर्स उससे एब्सटेन रहना तो आपके लिए टफेस्ट हो जाता है ना. तो वही चीज़ मैंने उसको थोड़ा सा इडियोमैटिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दी है. हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है द डिफ़िकल्ट थिंग, राइट, द टफेस्ट थिंग यू डिड और यू डू. एंड सेकेंड, अ डाई हार्ड फैन, इट मीन्स आप किसी चीज़ को दिल से पसंद करते हो. ओके, सो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, है ना. एज आई वॉज अ डाई हार्ड फैन ऑफ चाइनीज़ डिशेज़, ऑफ कोर्स दैट इज़ क्लियर. एंड एवरी फूड आउटलेट यूज टू कैच माई अटेंशन. हर एक फूड आउटलेट मेरी अटेंशन अपनी तरफ कैच कर लेता था. ओके, बट टू माई मच सरप्राइज आई टर्न entirely resistant to all those delicacies thanks to the strong determination and the persistence. अब turn entirely resistant, that means कोई इम्पॉर्टेंस नहीं देते हो, है ना. यू स्टार्ट एब्सटेनिंग फ्रॉम दोज डिशेज़. एंड ये कैसे होता है? दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस. जब आप स्ट्रांगली डिटरमाइंड होते हो और आपको बहुत तगड़े वाली, परसिस्टेंट का मतलब होता है ज़िद्दी, है ना, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़िद मच जाती है और जिसकी वजह से यू डिवेलप अ शील्ड अराउंड योर सेल्फ एंड यू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल दीज बैड हैबिट्स. एवर सिंस आई मेड दिस चेंज माई स्ट्रिक्ट रेजिमन, यहाँ एन भी आने वाला है. रिजाइम इज़ योर अथॉरिटी, रेजिमन इज़ काइंड ऑफ थिंग यू फॉलो डेली, योर डेली रूटीन. So ever since I made this change, my strict regimen, I have not only become slim and trim but also look quite younger than my age. अब आप उसके पॉजिटिव आउटकम्स बताने वाले हो जब आपने जल्दी उठना शुरू कर दिया. ओके, सो आइसिंग ऑन केक इज़ दैट, आइसिंग ऑन केक मीन्स सोने पे सुहागा, दैट my lethargic attitude has vanished in thin air. वैनिश्ड इन थिन एयर का मतलब होता है हवा में उड़ जाना, राइट, एकदम से गायब हो जाना. सो आपका जो लेथार्जिक एटीट्यूड था, आलस वाला एटीट्यूड था, वो वैनिश हो गया है थिन एयर में. एंड यू हैव बिकम हेल एंड हार्डी पर्सन.
बहुत हेल्दी और जॉली पर्सन बन गए हो देन एवर बिफोर. These are the positive outcomes. You started following that particular regimen. Now comes your last bullet point, that is how do you feel about it? How did you feel about it? So, if I talk about how I feel about it, all I can say is I feel over the moon every time I see myself in mirror. My complete transformation has made my kith and kins speechless and spellbound. अब फीलिंग ही बता रहे हो है ना. फील ओवर द मून का मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, और स्पीचलेस एंड स्पेल बाउंड का मतलब होता है स्टन्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना, एस्टॉनिश्ड हो जाना. फाइन. तो जब भी मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है भाई, तो आपको अच्छा ही लगेगा है ना. आपका स्किन टेक्सचर इम्प्रूव हुआ होगा, बॉडी टेक्सचर आपका इम्प्रूव हुआ होगा. एंड और जब आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने देखा तो दे वर ऑल्सो सरप्राइज्ड. So now let's learn how we can use this story plotting in these 10 cue cards. इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिएगा. आई विल बी हैप्पी, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट. द फर्स्ट वन, टॉक अबाउट अ डिफ़िकल्ट डिसीजन दैट यू वंस मेड. ऑफ कोर्स ये डिसीज़न आपके लिए टफेस्ट होगा क्योंकि आप तो फास्ट फूड के फ़ैन थे भाई, है ना. और ये जब भी आप किसी भी होटल के पास से गुजरते थे तो दैट यूज़ टू अट्रैक्ट योर अटेंशन, दैट यूज़ टू कैच योर अटेंशन, एंड दैट वाज द टफेस्ट डिसीजन यू मेड इन योर लाइफ टू abstain फ्रॉम द फास्ट फूड. Second cue card, describe an occasion when you got positive feedback for the work that you did. तो हमने उसमें पॉजिटिव आउटकम्स दिए हैं ना कि सबसे पहले when you attended the party everybody had the belly laughs, but later they were speechless and spellbound, seeing your complete transformation. Okay. Next, describe a positive change in your life. इसमें भी same story plot कि पहले when you had or you consumed fast food तो you were lethargic, you were obese and you looked older than your age, और उसके बाद आप हेल और हार्टी हुए, स्लिम एंड ट्रिम हुए एंड ऑल. सो दैट वाज अ पॉजिटिव चेंज, राइट. द सेम स्टोरी प्लॉट कैन बी यूज्ड. हमारा नेक्स्ट क्यू कार्ड है एन एम्बिशन दैट यू हैवंट अचीव्ड. अब आपकी एम्बिशन है कि आप स्लिम और ट्रिम हो, लेकिन आप नहीं कर पाए हो. क्यों नहीं कर पाए हो? आप वही बोलने वाले हो कि यू आर दिस मच एडिक्टेड टू फास्ट फूड और यू आर द डाई हार्ड फैन ऑफ द फास्ट फूड दैट यू कैन नॉट रेसिस्ट योर सेल्फ from consuming it. ठीक है, and it is completely a hard nut to crack. So the same story plot. I hope you understood. Difficult thing वाला भी हो जाएगा, ये तो मैंने explain ही कर दिया, right? The next important thing you learned not at your college or school. अब इस क्यू कार्ड में स्टोरी प्लॉट की ट्विस्टिंग ऐसे होने वाली है कि आप मोटे हो गए थे एंड यू अटेंडेड अ पार्टी, देयर पीपल हैड बेली लाफ, and then there must be a wise person who would have advised you, and he advised you that it is really very important to be in your shape, है ना. So that can be twisted as it is. The next is describe something you did with someone or with group of people. मैंने स्टोरी ही कुछ ऐसे प्लान करी है कि आप बैड कंपनी में चले गए थे और आपने फास्ट फूड लेना शुरू कर दिया. लेटर बस आपको थोड़ा सा ट्विस्टिंग ऐसे करनी होगी एट द एंड ऑफ द क्यू कार्ड की ऑल योर फ्रेंड्स स्टार्टेड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू ऑल वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक एंड ऑल. सो दैट वॉज एक्टिविटी यू डिड इन द ग्रुप. नेक्स्ट क्यू कार्ड भी हो जाएगा आपकी कंप्लीट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द सक्सेस यू वांट टू स्पीक हियर अबाउट. और हमारा लास्ट क्यू कार्ड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी यू डू टू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी. यही हो सकता है व्हेन यू एब्सटेन योर सेल्फ, व्हेन यू रेफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम द फास्ट फूड, दैट इज़ अ थिंग विच कीप्स यू हेल एंड हार्टी और हैप्पी और हेल्दी. दैट्स वेरी फाइन. अब जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. हैव अ नाइस टाइम.